So, hello everyone, we are back with another episode of Is It Necessary? And today we are going to talk about a topic which is like I think which is one of the most important topic which we are going to address on this podcast till now. And today I thought that कि यार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ना, हर एक पर्सन को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए. सो द टॉपिक विच वी आर गोना talk about today is non-verbal communication. So what is exactly non-verbal communication? What are its importance? What are the benefits of it? And like how you can improve your non-verbal communication? And what are the types of non-verbal communication? So it is a topic which I have learned recently in my business communication class in my MBA. So I thought that this is one of the things like which should be taught to each and every person, not only the students who are doing MBA or who are like doing such courses, but it is something like everyone should be aware of. So that is why I thought that I should record a podcast on it. I should record a small podcast on this explaining the topic so that people can get an idea and people can start implementing those things in their life. So before starting with non-verbal communication, let us talk about the communication. What is communication exactly? So communication क्या होता है कि तुम किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी भी अपनी बातों को रख रहे हो सामने, किसी भी चीज़ को तुम बता रहे हो, बोल रहे हो, समझा रहे हो, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. अब वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल. ठीक है. तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि यार जो तुम मुंह से बोल रहे हो उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि तुम अपने मुंह से बोल रहे हो, अपनी बातों को बता रहे हो वगैरह. उसके अलावा सेकेंड पार्ट होता है उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि यार जब हम बातें करते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम जो मुंह से बोल रहे हैं वो ही एक पर्सन सुन रहे हैं. हमारे एक्सप्रेशंस, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा पोस्चर, हम किस वे में देख रहे हैं, हमारे आई कांटेक्ट कैसी है, हम क्या चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ पार्ट होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के. और आजकल की दुनिया में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. भले तुम्हारे बात जो तुम कर रहे हो, द वर्ड्स यू आर गोइंग टू से, it can be possible that those are the most important words to you, but how it will like सामने वाला पर्सन कैसे उस चीज़ को समझेगा या कैसे उस चीज़ को लेगा, that is the most important thing, and it all depends on your non-verbal communication. So the words you say are important. How you say are the most important thing, like how you're gonna tell them, like the voice modulations and the intensity of your speaking and the body language from which you are saying. like अब तुम कुछ important बात बोल रहे हो पर तुम सीरियस ही नहीं हो यार, तुम एकदम ऐसे हाथ बंद करके एकदम शांति से बिना एनर्जी से बोल रहे हो, तो कोई सुनेगा ही क्यों. चाहे हो सकता है कि तुम्हारी बात बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट हो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो, बट द वे यू स्पीक इट एंड द वे यू शो योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. So that is what we are going to talk about, non-verbal communication. So why it is important for us? Like non-verbal communication is most important because it gives a valuable information to others. Like if I'm saying something and you're watching me on a stage, or if I'm talking to you personally, how I'm portraying everything, how I'm saying what is my body language and how I'm like using my gestures, how I'm using eye contact, it gives a value, it gives a valuable information to the other person that yes, Mayank Shankar, if he is speaking, he's speaking with his heart. और उनको पता चल जाता है यार बॉडी लैंग्वेज से कि तुम जेन्युइनली उस बात के बारे में बोल रहे हो, तुम जेन्युइनली उस बात को बिलीव करते हो कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम सच बोल रहे हो. बहुत सारी चीज़ें पता चलती है यार बॉडी लैंग्वेज से, बहुत सारी चीज़ें पता चलती है नॉर्मल कम्युनिकेशन से. सेकेंड चीज़ जो हमें पता चलेगी, मतलब जो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट शोज एन ओवरऑल एटीट्यूड. अब कैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बस ऐसा नहीं है कि तुम कुछ बोल रहे हो तो तभी तुम्हें लाइक फॉलो करना है. अब यार हम एक क्या कहते हैं ग्रुप में खड़े हैं 4-5 लोगों के, तुम एक पार्टी में हो, कोई एक पर्सन कुछ बोल रहा है, कोई एक लड़की या लड़का कुछ भी बोल रहा है, एंड तुम उनके सामने कैसे खड़े हो, तुम कैसे मतलब उन्हें कैसा कंफर्ट फील करा रहे हो बिना कुछ किए, ओनली बाय हैंडलिंग योर बॉडी, like by handling your body language in a particular way, you show them a comfort, or you show them a support, or you show them a empathy. अगर कोई पर्सन तुम्हें कुछ बोल रहा है और मतलब जनरली वो कुछ ऐसा अपने लाइफ के सैड चीज़ के बारे में बात कर रहा है सपोज, सो हाउ यू आर लाइक टेकिंग दोज थिंग्स, तो इट शोज एन ओवरऑल एटीट्यूड कि तुम सही में सुन रहे हो, तुम्हारा रिएक्शन क्या है, वो चीज़ हमें बता दे. बिकॉज अगर कोई पर्सन कुछ बोलेगा और वो कुछ कोई सैड चीज़ बोल रहा है और मेरा बॉडी लैंग्वेज एकदम ऐसे कूल है या एकदम ऐसे हंस रहा हूँ या मैं एकदम केयरलेस शो कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इट विल शो अ डिसरिस्पेक्ट टू हिम और हर.
सो दैट इज़ हाउ लाइक दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यार सही वक्त पे सही वे में तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड द थर्ड थिंग विच लाइक आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज लाइक इफ़ योर वर्ड्स match your body language, then it creates trust. And if they don't match your body language, then it creates mistrust, or it creates क्या कहते हैं doubt. It creates it does not create authenticity if your words are not matching your body language. If your words are matching your body language, it will create authenticity in front of other people, in front of other people's eyes. तो अगर कैसे लोग देख रहे हैं तो यार तुम जो चीज़ बोल रहे हो, तो अगर तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे वर्ड्स और तुम्हारा जो मकसद है, जो तुम्हारा मैसेज है, उसके साथ मैच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बढ़ेगा, कहीं ना कहीं एक लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये जो बोल रहे हैं मतलब वो बिलीव करते हैं, वो ये चीज़ मानता है, इसलिए वो ये चीज़ बोल रहे हैं. अगर तुम यार तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग है, तुम बात कुछ अलग कर रहे हो, लोग सीरियसली नहीं लेंगे यार. सपोज तुम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो लाइफ के बारे में, और तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज एकदम ऐसे नॉर्मल सा है, और तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से शो हो रहा है कि यार तुम खुद सीरियस नहीं हो उस चीज़ को लेके, तो कोई तुम्हारी बात को क्यों सुनेगा. So that is something why body language and non-verbal communication are important. So what are the benefits of non-verbal communication? Let's talk about this thing. So the first thing is it supports your message. Like if you are saying something, it will give you a support. It will give you a push. If I'm saying something and if my body language are matching with my words, like what I'm trying to say, then it will give me a support. कि मुझे सपोर्ट मिलेगा थोड़ा सा अगर मेरा बॉडी लैंग्वेज एकदम सही है. अगर मैं कोई यार सपोज मैं कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ क्लास में, ठीक है, क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, और मेरा जो जिस वे में मैं बोल रहा हूँ, मैं जिस वे में कॉन्फिडेंट हूँ, जिस वे में मेरा बॉडी लैंग्वेज है, जिस वे में मेरा आई कॉन्टैक्ट है, हर एक चीज़ है, वो अगर परफेक्टली अलाइन होगा तो टीचर मेरी बात को सुनेगा, स्टूडेंट्स मेरी बात को सुनेंगे. नहीं तो कोई स्टूडेंट क्यों सुनता है यार. अभी क्लास में तुम बैठे हो यार, तुम्हें खुद को पता है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगर पर्सन में एनर्जी नहीं है, तो तुम खुद नहीं सुनते यार. अगर कोई टीचर पढ़ाता है एंड वो पर्सन तुम्हें बहुत एनर्जी से और बहुत सीरियसनेस से एक बॉडी लैंग्वेज कैरी करे, तो अपने आप ही लोगों का अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है, अपने आप ही. ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़े. पर बहुत सारे तुमने देखे होंगे, तुम्हारे फैकल्टी रहे होंगे, टीचर रहे होंगे, कि जो एनर्जी नहीं है या सीरियसनेस नहीं है या होनी, वो हम कैसे जज करते हैं? बॉडी लैंग्वेज से ही जज करते हैं ना. कोई ऐसे थोड़ी ना बोलता है कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ बट मैं सीरियस नहीं हूँ पढ़ाने, कोई नहीं बोलता है ऐसे. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बॉडी लैंग्वेज विच ही और शी इज शोइंग टू द क्लास. So that is something. And one of the benefit is like it will show your intention. So like if I am saying something and my body language is correct, then it will show my genuine intention towards the topic. Like if I am giving my interview and my body language is aligned with the things which I am showing, that yes I am ambitious or I am enthusiastic or I am like workaholic or something ye wo, then if my correct body language will show the intention, yes my intentions are right. And if my body language is not correct, then it will show that my intentions are wrong, and it will create a doubt in front of the interviewer, that he or she will think that कि यार ये पर्सन सीरियस ही नहीं है जो बोल रहा है, इसकी बातों से लग ही नहीं रहा यार, इसके बॉडी से ना, इसके एटीट्यूड को देख के या इसके बॉडी लैंग्वेज को लग ही नहीं रहा कि जो बोल रहा है वो सही में करता होगा कि नहीं करता होगा. दूसरी चीज़, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू यार तुम ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट कि if a person, if my close friend is going through a tough time and he or she is telling me something कि यार ये प्रॉब्लम चल रही है घर में या ये दिक्कतें चल रही है, and if I'm showing him or her a empathy or a support and my body language is like that कि हाँ यार मैं उसे समझ रहा हूँ, उसकी बातों को सुन रहा हूँ and मैं उस चीज़ को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ यार जो चीज़ की प्रॉब्लम जो उसकी है वो जेन्युइन है, तो मेरा जो बॉडी लैंग्वेज होगा वो दिखाएगा कि हाँ मेरी फीलिंग्स जेन्युइन है कि नहीं. अब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है यार कोई नहीं होता है ये वो, और मैं एकदम अपने धुन में हूँ या अपने वे में हूँ और मैं अच्छे से नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली यार देखो ह्यूमंस वर्क ऑन इमोशनल लेवल. ओके, सो लाइक योर इमोशंस, योर फीलिंग्स मैटर द मोस्ट. लाइक द पर्सन हु यू केयर फॉर, यू हैव टू शो देम फीलिंग्स. लाइक कि आपका जो दोस्त है, आपकी जो फ्रेंड है, कि आपकी फीलिंग्स कैसे हैं उनके लिए. ऐसा नहीं कर सकते कि यार वो कहते हैं कुछ सीरियस बात कर रहे हो और आप हंसी मजाक में ले रहे हो, ठीक है. ऐसा नहीं कर सकते कि यार वो मस्ती कर रहे हो और आप सीरियस में ले रहे हो. लाइक देयर शुड बी अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड यू हैव टू रिएक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन, ऑन द बेसिस ऑफ द सिनेरियो और द सीन विच इज गोइंग ऑन. एंड दैट इज वाई लाइक बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विल गिव देम अ फीलिंग, विल एड अ फीलिंग ऑफ योर्स इन दो सिचुएशन. Non-verbal communication shows a overall personality of yours.
this is also one of the benefit. Like it will show you, it will show your personality in front of others. Like what is your personality? Like if you are standing in front of 10 people, 15 people, or if you are standing in a close group, like if you are meeting some new friends or you are making some new friends and you are standing in front of them, it will show your personality in front of them. Like the people who are shy, obviously like their body language will not be so much open in कंपेरिजन टू एक्सट्रोवर्ट पीपल. सो अगर जो थोड़ा शाय है या कुछ है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी क्लोज होगी, थोड़ा सा हाथ वाथ ऐसे क्लोज होगा, या थोड़ा सा ऐसे वो मतलब पीछे रहेंगे, या वो थोड़ा सा उसमें में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इंडल्ज नहीं होंगे. बट जो एक्सट्रोवर्ट होंगे या जिनको इंडल्ज होना है तो वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो लोगों से पूछेंगे. ये सब मतलब तरीके होते हैं बहुत सारे डिफरेंट. बट आई एम जस्ट सेइंग कि बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत सारी चीज़ें दिखाता है एक्चुअल में लोगों के सामने. ठीक है. सो ये तो था बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस जो हम लोगों ने अभी तक बात की. ठीक है. तो अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स. सो फर्स्ट वन इज़ योर मूवमेंट, योर ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज में मतलब जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर द वे यू वॉक एंड द मूवमेंट्स विच यू डू वाइल टॉकिंग और वाइल डूइंग एनी काइंड ऑफ थिंग, लाइक एनी काइंड प्रोफेशनल. ओके. सो इसमें क्या होता है कि यार जिस वे में आप चल रहे हो वो बहुत मैटर करता है. अगर आप बाई चांस कॉर्पोरेट में जा रहे हो सपोज, एंड इफ़ यू आर गिविंग एन इंटरव्यू, द वे यू एंटर पीपल स्टार्ट जजिंग यू. आप जैसे ही घुसते हुए अंदर आ रहे हो वैसे ही लोग आपको जज करना शुरू कर देंगे कि आपके वॉक से, आपके चाल से, आपके बॉडी के इससे. अगर आप ऐसे झुके हुए हो तो ऑब्वियसली वो लोग सोचेंगे कि यार दम है इसमें कि नहीं. एंड इफ़ यू आर लाइक ऑब्वियसली स्टिफ, और इफ यू आर कॉन्फिडेंट, योर द चिन इज अप एंड योर नेक इज लाइक स्ट्रेट, सो इट विल शो अ कॉन्फिडेंस कि यस दिस पर्सन इज लुकिंग कॉन्फिडेंट, लेट्स लॉक टू हिम. पहले से एक इमेज लाइक बिफोर स्पीकिंग आप मुंह तो बाद में खोलोगे यार, पहले लोग आपको देखेंगे, पहले आपको लोग देखेंगे और तभी आधी से ज़्यादा चीज़ें जज हो जाती है आजकल. तो आप मुंह खोलो उससे पहले ही लोग आपको जज करने लगेंगे आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके मूवमेंट से, आपके वॉक से, द पोस्चर लाइक यू आर सिटिंग. सो दिस इज लाइक जैसे तुम बैठ रहे हो किसी, तुम मीटिंग में गए हो या किसी में भी, अगर तुम्हारा बॉस मीटिंग ले रहा है एंड तुम बैठ रहे हो क्लास में, मतलब कॉन्फ्रेंस में, और तुम यार एकदम ऐसे बैठे हो या एकदम ऐसे पैर ऊपर करके बैठे हो या एकदम ऐसे, मतलब सीरियसनेस ही नहीं है वो, मतलब एक समझ में आता है. एक अटेंटिवनेस कैसे शो करोगे कि तुम अटेंटिव हो? बाय योर बॉडी लैंग्वेज, बाय द वे यू आर सिटिंग, बाय योर पोस्चर, इट विल शो द अटेंटिवनेस ऑफ योर्स. सो अगर किसी को बताना है तो ऑब्वियसली यू लाइक इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट गोइंग एंड देयर इज अ मीटिंग, देन आप थोड़ा स्ट्रेट बैठोगे, थोड़ा सा अच्छे से बैठोगे, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई ये बंदा सुन रहा है यार, दिमाग से सुन रहा है, ऐसे ही नहीं कि बस आने के लिए फॉर द सेक ऑफ कमिंग आया, बस ऐसा नहीं है, ये सुनना है, ये करना है. ठीक है. एंड तो ये तो था एक टाइप कि यार तुम्हारा मतलब ओवरऑल वॉक, तुम्हारी मूवमेंट, तुम्हारा पोस्चर, ये एक टाइप हो गया. एक टाइप है तुम्हारा जेस्चर्स. सो एक्सप्रेशन यार बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. ठीक है. तुम जब भी किसी से बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली योर एक्सप्रेशन, योर फेस इज द फर्स्ट थिंग, लाइक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच दे लुक इन टू. लाइक इफ आई एम टॉकिंग, ऑब्वियसली यू आर लुकिंग इनटू माई फेस, ऑन माई लिप्स, द वे आई एम टॉकिंग. तो ऑब्वियसली पीपल लुक इन टू योर फेशियल एक्सप्रेशन, तुम्हारे एक्सप्रेशंस कैसे बदल रहे हैं बातों के साथ. ठीक है. ये चीज़ें ऐसी है कि थोड़ा सा ना आपको ऐसे नहीं कि ज़्यादा कॉन्शियस हो कि हर एक छोटी छोटी चीज़ में भी एकदम बड़े बड़े एक्सप्रेशन दो रहे, ये नहीं. मतलब मैंने देखा है लोगों को करते हुए कि वो बेसिक चीज़ों में कुछ ज़्यादा एक्सप्रेशन देंगे तो इट ऑल्सो लुक्स ऑड. ठीक है. तो तुम्हें तुम्हारे एक्सप्रेशंस को तुम्हारी बातों के साथ बैलेंस करना आना चाहिए प्रॉपरली. इट शुड बी बैलेंस के जो चीज़ तुम बोल रहे हो वैसे तुम्हारा एक्सप्रेशन हो. ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल सी चीज़ है उसमें बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है और जो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट या बड़ी चीज़ है एंड उसमें एकदम छोटा सा एकदम ऐसे, या तो समझ रहे हो. मतलब it matters, your facial expression matters. So that is like something which you have to be focused upon, you have to be aware of कि तुम्हारे एक्सप्रेशन क्या है while you are saying something and while you are listening something. जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना वो बस इसलिए मतलब उस वक्त नहीं होता कि जब तुम बोल रहे हो तभी तुम्हारे क्या है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स लाइक इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट दैट जब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो तुम कैसे परसीव कर रहे हो, कैसे ले रहे हो उन चीज़ों को, तो वो भी इंपॉर्टेंट है. मतलब दोनों साइड से होना चाहिए. जब तुम बोल रहे हो तब तुम्हारा ओवरऑल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, और जब तुम कुछ सुन रहे हो तब भी तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है वो भी मैटर करता है. यार अभी कोई तुम्हारे कॉलेज का प्रिंसिपल हो या तुम्हारे कंपनी का बॉस हो, तुम्हारा मैनेजर हो, कोई भी बड़ा पर्सन आए या तुम्हारे पेरेंट्स हो, तुम्हें कुछ बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ और तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज एकदम केयरलेस है, केयर फ्री है, ज़्यादा सीरियस नहीं है,
तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड के, इट विल क्रिएट एन इमेज ऑन देयर माइंड. हो सकता है कि तुम मन से सुन रहे हो सकता है कि तुम मन से चाहते हो कि हाँ मतलब तुम जेन्युइनली समझ रहे हो उन चीज़ों को, बट तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज अच्छा शो नहीं होगा ना, तो उनको लगेगा कि यार ये बंदा सुन रहा ही ना, ये क्या कर रहे हैं, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसको आगे क्यों बोलूँगा. तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से आगे की चीज़ें सब जज हो जाती है. सो लाइक यू हैव टू फोकस ऑन दोज थिंग्स. अनदर टाइप इज द स्पेस. सो व्हाट इज स्पेस? स्पेस ऐसे नहीं कि यार हम लोग चांद तारों की बात करें, नहीं. स्पेस बिटवीन टू पीपल, between three people. If you are meeting someone and if you are meeting for them for the first time, obviously you will maintain a distance between you and like him or her. थोड़ा सा डिस्टेंस रखोगे तो स्पेस मैटर्स. ऐसा नहीं कि तुम पहली बार मिल रहे हो और एकदम आजा चिपक जाओ, नहीं, कभी नहीं. तुम्हें थोड़ा सा अपना स्पेस मेंटेन करना आना चाहिए. तुम्हें पता होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, व्हाट इज़ द रिलेशन यू आर लाइक, इट इज़ इट फॉर्मल और इज़ इट नॉन लाइक इनफॉर्मल, इफ लाइक ही और शी इज़ योर फ्रेंड और लाइक कलीग या कौन है. So it depends, it matters, the space matters the most. If you are meeting a woman for the first time, obviously you will not go like कि बहुत पास चले जाओगे या कुछ, obviously उनको बहुत गंदा फील होगा. और स्पेस सिर्फ वुमेन के लिए, मैन के लिए भी. कोई पर्सन है, कोई तुम्हारा बॉस है या कोई तुम्हारा प्रिंसिपल है, प्रोफेसर है, कोई भी हो सकता है, कोई भी मतलब हायर पर्सन जो तुम्हारे से थोड़ा ऊंचे कद पे है और तुम उनके साथ एकदम जाके चिपक जाओगे तो उनको लगेगा व्हाट इज़ दिस मैन, दिस इज माई स्पेस. तो थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. स्पेस को सही से मतलब, अब मेरा कोई दोस्त है यार, अब मेरे जो बचपन के दोस्त हैं, मैं उनसे मिलूंगा यार, गले वाले पाऊंगा, चप्पी वप्पी पाऊंगा, मैं इनके पास रहूँगा, चिपकूंगा, कुछ भी करूँ, वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि वो मेरे दोस्त है यार, उनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, वो मेरे साथ कंफर्टेबल है, मेन चीज़. बट कोई पर्सन है जो तुम्हारा फॉर्मल फ्रेंड है या तुम्हारे ऑफिस का है या तुम्हारे कॉलेज का है या कुछ है, तो तुम ऑब्वियसली एक स्पेस मेंटेन रखोगे. स्पेस मैटर्स द मोस्ट. अगर कोई पर्सन ज़्यादा चिपकेगा तो उसको इरिटेशन होगी कि यार ये कैसा चिपकू बंदा है यार, एकदम आगे पास में खड़ा हो गया. ज़्यादा ही दूर खड़े रहोगे कि वो बंदा उधर से, तुम यहाँ पे पास ही नहीं जा रहे हो, तो वो भी अजीब लगेगा. तो स्पेस भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे रिलेशन के अकॉर्डिंग, कि द रिलेशन विच यू आर लाइक, जो तुम्हारा है उनके बीच में. अब एक और सबसे इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप पे आ जाता है, दैट इज़ आई कॉन्टैक्ट. तो यार जैसे लोग बोलते हैं ना कि आँखों से बहुत कुछ पता चल जाता है, ये सच है. तो आँख, तुम्हारी आई कांटेक्ट मतलब तुम, जैसे मैं अभी कैमरा में देख रहा हूँ तो मेरा आई कांटेक्ट ऐसा होना चाहिए. मतलब ऐसा भी नहीं कि तुम किसी से बात करो तो एकदम उनके आँखों में घुस ही जाओ, तुम इधर उधर देखो, बट एक मेंटेन करो आई कांटेक्ट, ताकि तुम्हारा मतलब उस बंदे का जो भी तुम्हें सुन रहा है उसका ना फोकस तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारी बातों को समझे. बहुत बार ना तुम्हारे आँखों से ही बहुत सारी बातें कह देते हैं लोग, जैसे लोग कहते हैं ना. तो अब जैसे आई कांटेक्ट ऐसा है कि जैसे अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं क्लास की तरफ बोल रहा हूँ, दो लेन्स है, एक कुछ बच्चे इधर बैठे, कुछ बच्चे इधर बैठे, और मैं इस तरफ ही देख रहा हूँ, इस तरफ ही बात कर रहा हूँ, तो इस तरफ वाले बच्चे क्या सोचेंगे कि यार हम भी तो बैठे हैं यहाँ पे, हमें भी वो समझा दे, हमें भी देख ले एक बार. क्या लगेगा उन्हें कि यार मैं तो सिर्फ इन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, यार ये लोग की तरफ फोकस हूँ. तो आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है. तुम किसी पर्सन से बात कर रहे हो और तुम्हारे लिए वो कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है, वो पर्सन इंपॉर्टेंट है, तो तुम एक अच्छा आई कांटेक्ट मेंटेन करोगे उनके साथ. तुम उन्हें देखोगे, तुम उनकी आंखों में देखोगे, थोड़ा लिप्स में देखोगे, मतलब एक आई कांटेक्ट मेंटेन करोगे ताकि वो बंदा या बंदी सीरियसली तुम्हें उन बातों को कहे. आई कांटेक्ट इसलिए कि ताकि सामने वाला पर्सन एक सही इंटेंसिटी से तुम्हें कुछ समझाए. आई कांटेक्ट इसलिए किया जाता है, आई कांटेक्ट इसलिए किया जाता है कि तुम किसी को टच करके या पास आके उन्हें कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो आंखों से तुम उन्हें फील कराओ, वो चीज़ फील कराओ, तुम उन्हें महसूस कराओ कि हाँ तुम उसके लिए बोल रहे हो, तुम उसको भी इंपॉर्टेंस दे रहे हो. तुम एक स्टेज पे खड़े हो तो तुम्हें हर जगह मतलब स्टेज के क्राउड अगर पूरे जगह पे, तो तुम्हें हर एक क्राउड के साथ एक बैलेंस आई कांटेक्ट बनाना ज़रूरी है. क्लास में कभी टीचर ऐसा नहीं करता कि स्टार्टिंग के 2 रो है तो उनको ही देख के बात करेगी या करेगा. पूरे क्लास के साथ वो पीछे के बच्चों को भी देखते हैं, आगे भी देखते हैं, साइड में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं. तो बिकॉज आई कांटेक्ट से फ़र्क पड़ता है, आंखों से बहुत सारी बातें हो जाती है. तो आई कांटेक्ट पे फोकस करो, अपने आई कांटेक्ट कैसे रखना है उस चीज़ पे फोकस करो. लाइक एक कुछ चीज़ें सीखो, थोड़ा सा देखो, अगर तुम कर रहे हो, बताऊंगा उसके बारे में आगे थोड़ा सा. द अनदर टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द टच. सो टच इज़ समथिंग के in India, like you have to be aware के who's the person you are touching in the sense मतलब in a normal way. Like if my friend is like going through a rough phase, I will give him or her a support, I will pat their back, I will like shoulder पे थोड़ा सा हाथ रखूँगा, मैं बोलूँगा कोई बात नहीं यार, चल करते हैं अपने,
कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। तो मतलब एक ऐसा टच होता है। दूसरा टच ऐसा होता है कि यार तुम बात कर रहे हो नॉर्मली, ठीक है, अब तुम्हारा एक वाइब अच्छा सेट हो रहा है, तो तुम बार बार ऐसे टच कर रहे हो सामने वाले को, ठीक है, अपना फ्रेंड को, तुम हाथ मिला रहे हो या एकदम ताली मार रहे हो या एकदम ऐसे कर रहे हो, तो ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो ये कैसा होता है कि ये जो ताली मारना हो गया, हाथ मिलाना हो गया या फिस्ट वगैरह हो गया, ये सब ये कैसे एक कंफर्ट के लेवल पे होता है। मतलब कि अगर सामने वाला पर्सन एकदम कंफर्टेबल हो गया, तुम एकदम चिल कर रहे हो, वाइब कर रहे हो फुल, तो वो अपने आप करेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि यार तुम कोई सीनियर पर्सन है और उसको अरे समझ, ऐसे ताली वाली नहीं कर सकते। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ कंफर्ट विच ही और शी इज शेयरिंग विथ यू। सिर्फ तुम्हारी तरफ नहीं, ये दो तरफा है, ये एक तरफा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें ऐसा फील हो रहा है तो यार मैं तो ताली दूंगा, मैं तो ये करूँगा वो, नहीं, सामने वाला पर्सन भी तो सही से हो रहा चाहिए ना। तो एक प्रॉपर जो टच का होता है उसमें कैसा है कि यार जैसे इंडिया में ऑब्वियसली अगर कोई फीमेल है, कोई लड़की है, तुम्हारा उनका रिश्ता ज़्यादा अच्छा नहीं है या अच्छा क्लोज नहीं है या ज़्यादा इतना नहीं है कि अच्छे टर्म्स हो तुम्हारे, तो तुम नहीं करोगे उन्हें टच, भले सिर्फ तुम साइड साइड में रख रहे हो या कुछ ऐसे ताली मार रहे हो, हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं। डिपेंड्स ऑन द रिलेशन, डिपेंड्स ऑन द कंफर्ट विच यू आर लाइक शेयरिंग। और अगर नहीं हो रहा है तो मत करो भाई, इतना भी ज़रूरी नहीं है। अगर यार मैं दोस्तों के साथ बैठा तो ऑब्वियसली हम मस्ती मजाक करेंगे तो हम करेंगे, तो इट ऑल्सो डेवलप्स अ रिलेशनशिप, इट ऑल्सो डेवलप्स अ सेंस ऑफ लाइक रिलेशन, कंफर्ट एंड एवरीथिंग। सो इसलिए टच भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो थे यार दोस्तों टाइप्स विच वी टॉक्ड अबाउट। नाउ let's talk about how you can like improve your body language. Okay, so थोड़ा सा हम बात करते हैं जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे फील होती है, like जो मैं करता हूँ प्रैक्टिस, दैट इज़ वन थिंग इज़ लाइक प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस क्या होता है कि यार जब तुम बोल रहे हो तो ऑब्वियसली यार देखो, ऐसा नहीं है कि हम लोग परफेक्ट है या हमेशा तुम्हारे एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज जो तुम बोल रहे हो उसके साथ ही मैच करेंगे, नहीं होता। वो प्रैक्टिस करके आएगा यार। तुम जब भी कुछ चीज़ को एक्सप्लेन करो, ट्राई करो अपने हैंड मूवमेंट्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने बॉडी लैंग्वेज को उस वे में करने की ट्राई करो, तुम्हें समझ में आएगा। जैसे लोग, जैसे अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने ग्रुप में हूँ, मैं अपने दोस्तों में हूँ, तो मेरे को समझ में आएगा जिस वे में मैं बोल रहा हूँ ना, तो उनको कैसा फील हो रहा है। इफ़ आई एम गिविंग अ प्रेजेंटेशन इन माई क्लासरूम एंड if people are listening to me carefully, then I will get an idea that yes, I am speaking in the right way, my body language is perfect. If people are responding, if people are happy, if people are listening to me carefully, if they are like their focus is on me, if they are looking to me, then it will show me that yes, I am doing something right, that is why they are listening to me. तो ये एक चीज़ है कि तुम प्रैक्टिस करो, और नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं यार, बार बार प्रैक्टिस करो ना। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने भी फर्स्ट टाइम जब मैंने स्पीच दी थी, लाइक आई वॉज इन माई आई गेस सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज इन when I was doing BTech. So I gave a speech in front of like 40 people. So there was a meeting organized and I was the speaker. So when I gave the like speech, so ऑब्वियसली हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, थोड़ा सा होता है, तो बॉडी ना रिजिड हो जाती है, मतलब बॉडी एकदम ऐसे हो जाती है, तुम्हें मन नहीं करता कि तुम बॉडी को खोलो या कुछ करो। सो आई वॉज लाइक, मैं जो बोल रहा हूँ मैं कॉन्फिडेंट था बोलने के लिए, मतलब मेरे पास जो चीज़ें थी, आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट दोज थिंग्स। सो मैंने बस उन चीज़ के बारे में बोला। मेरे कोई हाथ के मूवमेंट्स नहीं थे, मैं कोई स्टेज को यूज़ नहीं कर रहा था, मैं कुछ आगे पीछे नहीं कर रहा था ना कुछ भी, मैं बस आया, मैं नॉर्मली खड़ा था, मैंने अपनी चीज़ों को बोला, मैंने लोगों के साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाया, मैंने नीचे देखा, मैं नीचे देख के ऐसे बोल रहा था और मैं बोल के अपना चला गया। तो धीरे धीरे वो सेंस आया कि नहीं यार, तुम्हें लोगों के आंखों में आंखें डाल के चीज़ें बोलनी है। अगर तुम किसी को समझा रहे हो, पुश कर रहे हो, तुम्हें उनको आंखों में आंखें डाल के बोलना है, तुम्हें अपना इम्पैक्ट दिखाना है, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कि हाँ तुम कैसे बोल रहे हो। तो इट कम्स विद प्रैक्टिस एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करो, अपने क्लासमेट्स के साथ प्रैक्टिस करो, अपने ऑफिस में कलीग्स के साथ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस एंड इट लाइक यू विल, तुम ठीक हो जाओगे, तुम इम्प्रूव कर लोगे थोड़े टाइम में। द सेकेंड वे टू इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज इज़ बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। सो लुक टू द स्पीकर्स, लाइक तुम जो किसी भी आइडल को फॉलो करते हो, मे बी लाइक ही और शी कैन बी अ सेलिब्रिटी और अ पॉलिटिकल लीडर और एनी वन, लाइक look to them, how they speak, what are the body language which they are following while speaking on stage, while addressing a media, while addressing a like a launch party. If I'm looking to like Shah Rukh Khan or if I'm looking to Akshay Kumar, how his body language is in front of so many people, in front of a crowd of thousands of people. So you have to observe others and you have to then learn those things. Like I have seen some speakers, like some of the gurus or some of the leaders who like
लाइक यूट्यूब पे तुम बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे ऑब्वियसली, लाइक फॉर एग्जांपल गैरी वी हो गया, साइमन सिनेक हो गया, देयर आर मैनी 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 ऑफ देम. एंड व्हाट इज द बॉडी लैंग्वेज दे आर फॉलोइंग व्हेन दे आर ऑन स्टेज? What is the body language when they meet someone personally? What is the body language which they are following? देखो, उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होता है कि तभी तो तुम इंटरेस्टेड हो ना उनको देखने में. तुम बार बार उनकी वीडियोस क्यों देखते हो? संदीप महेश्वरी जी है, तो तुम उनकी वीडियोस क्यों देखना पसंद करते हो? बिकॉज द बॉडी लैंग्वेज विच दे आर डूइंग और विच दे आर फॉलोइंग इज अलाइंग विद द वर्ड्स विच दे आर स्पीकिंग. दैट इज वाई तुम्हें इंटरेस्ट आता है, तुम्हें लगता है कि हाँ भाई बंदा जेन्युइन है. आज संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, इनकी वीडियोस जब मैं देखता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को जेन्युइननेस फील होती है. मेरे को फील होता है कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, इन्होंने किया है वो चीज़ इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं. स्टूडेंट्स आते हैं उनसे पूछते हैं तो वो इतना कॉन्फिडेंटली उनको कंफर्ट करके, हंसी मजाक करके, जैसे भी. सो दिस आर सम बेसिक थिंग्स विच यू कैन ऑल्सो फॉलो. Third thing to improve the body language is what I think is to be energetic. You have to be energetic. लोगों को पसंद है यार कि जो पर्सन में एनर्जी है, जो थोड़ा सा जोश में है, थोड़ा सा, ऑब्वियसली लोगों को उन लोग से बात करना पसंद है. दिस इज साइकोलॉजी नॉर्मली कि यार जो बंदा इंटरेस्ट दिखाएगा, एनर्जी दिखाएगा, लोग उससे बात करेंगे यार. जो बंदा सुस्त होगा, धीरे होगा, कुछ बोलेगा नहीं, मुंह से कुछ बोलना चाह रहे बट मरमरा रहे हो, मुरमर कर रहे हो, नई बात नहीं कर रहे हो, तुम जो वर्ड्स बोलना चाह रहे हो वो वर्ड्स भी तुम पूरा नहीं बोल रहे हो. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो एनर्जी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा ऑरा, तुम किस वे में तुम बात कर रहे हो, तुम्हारा एनर्जी क्या है बोलते हुए, दैट मैटर्स द मोस्ट. सो बी एनर्जेटिक वाइल स्पीकिंग टू एनी वन, पर्सनली ऑल्सो और प्रोफेशनली ऑल्सो ऑन द स्टेज. The fourth thing which I would consider is important is a smile. You should carry a smile. You must carry a smile. While meeting to someone, you should smile. And you should give a small smile. No, ऐसे दांत फाड़ के नहीं, ठीक है. एक नॉर्मल, फॉर्मल, एक अच्छी स्माइल देनी बहुत ज़रूरी है. एक अच्छी स्माइल कैरी करना बहुत ज़रूरी है. तुम खड़े हो तो नॉर्मल से एक स्माइल होनी ज़रूरी है कि सामने वाले को लगे कि हाँ यार ये मतलब कुछ तो कहना चाह रहा है, या ये पर्सन बहुत सही है, या कॉन्फिडेंट है, ये ओपन है. कोई स्माइल, तुम यार किसी को स्माइल करते देखते तो ऑब्वियसली यू फील गुड यार. यू वांट टू टॉक टू देम बिकॉज यू थिंक दैट यार ही इज़ इन अ हैप्पी स्पेस, ही और शी इज़ इन हैप्पी स्पेस एंड आई वांट टू टॉक टू हिम और हर. सो you should carry a smile while speaking as well, to the friends or like to any professional or formal or informal. You have to, like, if you carry a smile, like it gives a sense of comfort to others, so you should smile. तो ये थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें थी यार जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है. एंड दिस आर नॉट लाइक समथिंग के बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी है और बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा कुछ थियोरेटिकल है, वो बहुत बेसिक चीज़ है. एंड बॉडी लैंग्वेज समथिंग इज समथिंग लाइक विच एनी वन कैन इम्प्रूव. एंड लाइक अगर मैं लोगों को सुनता हूँ, मैंने बहुत सारे लीडर्स को सुना है, वो लोग पहले ऐसे नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा शांत थे, बहुत मतलब लोगों के अलग अलग चैलेंजेस रहे. द पर्सन यू आर सीइंग टुडे ऑन अ वीडियो और समथिंग इज़ नॉट समवन लाइक कि वो बचपन से वैसा था. उन्होंने इंप्रूव किया चीज़ों को, उन्होंने बार बार प्रैक्टिस किया. बहुत बार लोगों को स्टेज पे रहे तो स्टेज पे जाकर चुप हो जाते हैं. आज जो बहुत बड़े बड़े स्पीकर हैं उनका भी वैसा दिन रहे हैं कि जब वो कुछ नहीं कर पाए, वो कुछ नहीं बोल पाए, वो लोगों को समझा नहीं पाए जो वो कहना चाह रहे हैं. सो body language is something which can be learned. Body language is something which can be improved day by day. So I think that was a podcast. ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा. So I think like this was one of the best podcasts, I think, because like it is an important topic which we should consider, and everyone should be taught about this thing in their school or in their college, because this is important. This is very much important. And if you love this content, then please subscribe us on YouTube channel. You can like, share and subscribe, and you can share this video with your friends. And if you're listening on Spotify, kindly follow us on Spotify, share the link with your friends, share this with the people like you think कि जिनको थोड़ा सा body language में improve करने की जरूरत है. Help your friends by sharing this video, sharing this audio. Thank you so much for watching this episode. I'm Mayank Shankar signing off, and this was the episode for Is It Necessary. Thank you so much. Until next time guys, next Tuesday मिलते हैं दोबारा 9 बजे. Thank you so much. Peace out.